نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، دلی اسماعتی ٹی وی کے اس کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا پیارا، بہترین، نایاب اور مجرب عمل لے کر آئے ہیں جس سے بہت لوگ متاثر ہیں۔ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جس سے وہ بہت پریشان رہتا، وہ مسئلہ یہ ہے اکثر لوگوں کو پیٹ خراب رہتا ہے، انڈائجیشن سسٹم، یعنی پیٹ کی خرابی، ان کا ڈائجسٹو سسٹم بہت ہی ویک، کمزور، مختلف طرح کی بیماریاں اس میں رہتی ہیں، اور یہ بیماریاں اکثر و بیشتر فزیکلی یعنی جسمانی اعتبار سے بھی ہوتی، لیکن کچھ معاملے ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں اور اپنے تجربے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی علاج معالجے کے بعد بھی، تمام ڈاکٹر یا حکیم یا اطباء کا علاج کرانے کے بعد بھی پیٹ کی بیماری یا پیٹ کا مرض ٹھیک نہیں ہو پاتا، یعنی اس پیٹ کے اندر میں کوئی نہ کوئی سحر جادو ہے، کوئی نہ کوئی سحر جادو اس پیٹ کے اندر ہے، اور جس سے پیٹ کی بیماریوں میں وہ انسان مبتلا ہے، پریشان ہے۔ اور بہت سارے پیٹ کے ٹیسٹ کرانے کے باوجود، کولونوسکوپی، انڈوسکوپی، ایبنارمل الٹرا ساؤنڈ یا اور دوسرے اینٹی باڈی ٹیسٹ، انفیکشن ٹیسٹ کرا لیا اور سارے ٹیسٹ نارمل ہے، لیکن پیٹ کی بیماری ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو سحر جادو کی وجہ سے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، لہذا جو حضرات بھی پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہوں ان کے لیے ہم یہ نایاب عمل پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اب ان کے پیٹ میں جو سحر جادو ہوتا ہے وہ سحر جادو کس طرح کا ہے، آپ پہلے تو ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، انسان کو کھانے پینے کی چیزوں میں، کھانا ہو یا کوئی پینے کی مشروبات، پینے کی چیز ہو، اس میں کچھ سحر جادو کر کے بغیر بتائے کھلا دیا جاتا ہے، اور وہ سحر جادو، اس میں کوئی راکھ بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مٹی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شیطانی تعویذ کو پانی میں گھول کر وہ پانی بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ شیطانی تنتر منتر یا شیطانی افسون، طلسمات پڑھ کر کھانے کی چیزوں پر، جیسا روٹی، سالن، بریڈ، ابلا ہوا انڈا، کوئی کولڈ ڈرنک، لسی، کافی، چائے، کٹے ہوئے فروٹ جیسا آم، امرود، کیلا، انگور، یا فروٹ سے بنا ہوا شربت یا جوس بغیر بتائے دشمن کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو تنتر منتر ہوتا ہے، جو سحر جادو ہوتا ہے، وہ بہت ہی بدترین طرح کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ عاملین حضرات کیا کرتے ہیں کہ راستے کی مٹی، ویران مسجد کی مٹی، ویران گھر کی مٹی، ویران مندر کی مٹی اور قبرستان کی مٹی اور اجاڑ بیابان جنگلوں کی مٹی، یہ اس طرح کے چند ہیش پاؤڈر وغیرہ جمع کرتے ہیں، اور اس کے اوپر میں کچھ ناپاک شرک یا منتر پڑھ کر اس کو کھلانے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ اور جو انسان بھی جادو کرتا ہے یا اپنے دشمن کے لیے کہ اس سے ہم نوا نہ ہو، اس سے متفق نہ ہو اور اس سے اس کو بغض ہو،
अदावत हो और वो उसको परेशान करना चाहता हो, तो वो उस तरह की मट्टी को, पड़ी हुई मट्टी को तंत्र मंत्रों की इतनी मिकदार में मिलाता है ताकि खाने वाले को जायके में महसूस ना हो सके। और कभी कभी ये मट्टी मरीज के बिस्तर पर भी डाल दी जाती है, उसके नहाने के पानी में भी मिला दी जाती है, उसके कपड़ों पे भी छिड़क दी जाती है। जैसे ही वो उस पानी से नहाता है या उन कपड़ों को पहनता है जिसमें वो मट्टी गिरी हुई हो, या वो खाने पीने की चीजें जिसमें मिलाया हुआ है वो खा ले, तो यकीनन इंसान के जिस्म से सहर जादू लग जाएगा। और अगर पेट में चला गया तो यकीनन जो फिजिकली चीजें हैं वो तो इंसान के जिस्म से बाहर आ जाएंगी, लेकिन उसके जो बदतरीन असरात हैं और उसकी जो नहुसतें हैं और वो जो रूहानी जहर है वो उसके पेट में सांप की शक्ल में, गंदगी की शक्ल में, कीड़े मकोड़ों की शक्ल में और शयातीन की शक्ल में और अजीब अजीब कुछ जानवरों की शक्ल में पेट के अंदर रहता है, वो बाहर हरगिज नहीं निकलता। और वही रूहानियात, वही बदतरीन चीजें, वही एंटिटी, वही खबीस, वही बदतरीन अमल के खबीसात इंसान के पेट में ऐसी तकलीफें पैदा करते हैं कि या तो उसे लूज मोशन होता है, या उसे उल्टी आती हैं, या उसे डकारें आती हैं, उसे खाना हजम नहीं होता, उसके पेट में जलन होती है, खाना खाने के बाद पेट में अफारा जैसा मालूम होता है, पेट टाइट हो जाता है। और तमाम इलाज कराने के बावजूद, डॉक्टरों के इलाज कराने के बावजूद, टेस्ट कराने के बावजूद उसके पेट की बीमारी ठीक नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके पेट के अंदर में सहर जादू की नहुसत जमी हुई है और वो इंसान हमेशा परेशान रहता है, दुबला पतला हो जाता है, जिस्म में खून नहीं बनता और खाने पीने से उसे कुछ नफरत सी भी होने लगती है। लिहाजा ऐसे अहबाब और ऐसे हजरात जिनके ऊपर इस तरह का जादू है कि उनके पेट के अंदर सहर जादू की नहुसत है या सहर जादू से शयातीन बैठे हुए हैं, उनको ये इलाज मैं बता रहा हूँ, वो इस इलाज को करें। इंशाअल्लाहुल अजीज उनको यकीनन इस अमल की बरकत से उल्टी होगी और उल्टी के जरिए जो भी गंदा पानी है, जो भी शैतान है, जो भी नहुसतें हैं वो निकल जाएंगी। और हो सकता है टॉयलेट में जाने के बाद क़ज़ाए हाजत के वक्त उसको ये सहर उसके सबील से निकल जाए। मेरे भाइयों, अमल ये है, मुलाहिज़ा फरमाएं मेरे भाइयों, ऐसे परेशान लोगों को और मरीजों को हरगिज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो अमल बता रहा हूँ उस अमल को करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अमल ये है कि आप हजरात पान का पत्ता लें। पान का पत्ता बड़ा होना चाहिए और उस पान के पत्ते के ऊपर में, और वो पत्ते आप जो लेंगे वो पत्ते 7 या 11 पत्ते हैं पान के पत्ते। पान के पत्ते लेने के बाद आप हर पान के ऊपर में एक तरफ सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, और दूसरी तरफ जो सूरह कौसर का नक्श आप हजरात की खिदमत में पेश किया जा रहा है इसे लिखें। यानी एक तरफ सूरह कौसर और एक तरफ ये नक्श। इस तरीके से आप 11 पान के पत्ते या 7 पान के पत्ते लिखेंगे। अगर आप ना लिख सकते हो तो बराह करम किसी इंसान से लिखवा लें। और लिखने के बाद हर पान के पत्ते पर आप 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम करेंगे दोनों तरफ, यानी जहां नक्श लिखा हुआ उस तरफ भी और जहां सूरह कौसर लिखे हो वहां भी। इस तरीके से आप ये पान के पत्ते तैयार कर लें। और पान के पत्ते तैयार करने के बाद आप पीने का पानी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर उस पर 101 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। और अबतर को आप मजीद 3 मरतबा दोहराएंगे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर 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 अबतर। और उस पानी को आप दम करेंगे और मरीज को बावजू बिठाएं, खा वो औरत हो या मर्द हो या बच्चा हो, और कम से कम 2 लीटर पानी जो आपने दम किया है सूरह कौसर से
मरीज को बोलें कि पान का पत्ता चबाता रहे और पानी पीता रहे, और इसमें आपको हरगिज भी फासला नहीं देना है कि एक पान का पत्ता आपने खा लिया, पानी पी लिया, फिर आपने रुक गए। रुकना नहीं है, तसलसल के साथ पान का पत्ता जल्दी जल्दी चबाकर निगलना है और पानी पीते रहना है, और पानी इस मिकदार में पीना है कि गोया के अब आपकी बर्दाश्त से बाहर है, और ज्यादा पानी पीने की वजह से आपको उल्टी हो जाए। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल की बरकत से उस मरीज को ऐसी बदबूदार उल्टी होगी और ऐसी बदबूदार और ऐसी गलाजत उसमें से निकलेगी, और वो शयातीन जो बरसों से बैठे हुए हैं, जो सहर जादू उसके पेट में जमा हुआ है, इंशाअल्लाहुर रहमान इंशाअल्लाहुल अजीज वो निकल कर बाहर आ जाएंगे। शयातीन आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो पेट में गंदगी है वो जरूर उसमें से निकल कर आएगी। और अगर उल्टी ना हो तो हलक में उंगली डालकर आप यकीनन उल्टी करने की कोशिश करें जितना हो सके। और मजीद ये है मेरे भाइयों, इस अमल को आप अगर बहुत पुराना मरीज है तो 11 दिन करेंगे, और अगर ज्यादा पुराना नहीं है, दरमियानी है, मुतवस्सित है, मीडियम है, तो फिर आप उसे 60 दिन करेंगे, और अगर मामूली है तो 3 दिन करेंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज आपके पेट के अंदर जो भी शयातीन सहर जादू के खिलाने पिलाने की वजह से बसे हुए हैं वो निकलकर बाहर आ जाएंगे और आपको सुकून हो जाएगा। और मजीद आप सुबह 1 गिलास पानी लें, फजर की नमाज पढ़ें, फजर की नमाज के बाद किसी से बात ना करें, दुआ करने के बाद 101 मरतबा या 21 मरतबा उन लोगों के लिए है जो बहुत मामूली दर्जे के बीमार हैं, नहीं तो 101 मरतबा सूरह कौसर पानी पर दम करें और उस पानी को पी लें। फिर रात में ईशा की नमाज के बाद 1 गिलास पानी लें, सूरह कौसर 101 मरतबा दम करें और उस पानी को पी लें। और ये अमल तसलसल यानी मुसलसल ये अमल आप 21 दिन आप देखेंगे कि जो ज़माना दराज से और सालों से महीनों से और आपकी उम्रें गुजर गई और पेट आपका खराब है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पे भरोसा रखें, इत्मीनान रखें, अल्लाह ही आपको शिफा देने वाला है, अल्लाह ही आपका मुहाफिज है, अल्लाह ही आपका शाफी है, अल्लाह ही आपका शाफिउल अमराज है। अल्लाह ही की तरफ से बीमारियां आती हैं और अल्लाह ही की तरफ से बीमारियां ठीक होती हैं और अल्लाह ही के हुक्म से बीमारियां ठीक होता हैं। सूरह कौसर को आप मामूली ना समझें, ये बहुत ताकतवर और बहुत ज़ूद असर सूरत है, और ख़ास तौर से पेट की बीमारियों में, पेट के सहर जादू में ये तीर बाहदफ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल मेरा आजमाया हुआ है और हमेशा मेरे मुजर्रिबात में रहता है। 25 साल से मैं इस अमल को कर रहा हूँ और बेशुमार लोग अल्हम्दुलिल्लाह पेट की बीमारियों में जो मुब्तला थे बिफज़्लिल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से ठीक हो गए। मेरे भाइयों, अच्छी चीज़ों को फैलाएं, कुरान को फैलाएं, हदीस को फैलाएं, बयानात को फैलाएं, अल्लाह के जिक्र अज़कार को फैलाएं, नेकियों को फैलाएं। मेरे भाइयों, ये अमल इतना प्यारा है, आप इसे हर आपका खास हो या आम हो या कोई रिश्तेदार हो, कम अज कम हर इंसान को चाहिए कि मेरे इस अमल को, मेरे इस वीडियो को कम अज कम 10 लोगों तक पहुंचाएं, और जितने लोगों तक भी आप पहुंचाएंगे और वो इसको करेगा और उसको फायदा हासिल होगा और वो उसको सुनेगा और देखेगा, इंशाअल्लाह वो भरपूर नेकियां आपके नामाए अमाल में लिखी जाएंगी। इसलिए कि आपने अच्छाइयों को फैलाया है, आपने कुरान को फैलाया है, आपने ऐसी चीजें फैलाई हैं जो इंसान के लिए मुफीद हो, इंसान के लिए कारआमद हो, उसके लिए शिफायाबी का जरिया बने। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हरगिज आप बुराइयों की तरफ ना जाएं, अच्छाइयों की तरफ जाएं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।